उपस्थित जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री का। हमारा अभिवादन स्वीकारते हुए माननीय प्रधानमंत्री हर पल राष्ट्र हित में समर्पित, हर काम देश के नाम। मान्यवर Mrs. Sudha Murthy's gracious presence this morning reminds me of 24th October 2018. It was Shard Purnima Day when the Honorable Prime Minister had launched a new initiative called Self-Force Society. The Honorable Prime Minister interacted with Mrs. Sudha Murthy through video conferencing on that day. While thanking the Honorable Prime Minister for the impetus he had given to corporate social responsibility, Mrs. Sudha had also asked the Honorable Prime Minister a question. I quote, "Sir, what is your inspiration for this?" यानी कि मिसेस सुधा मूर्ति ने माननीय प्रधानमंत्री से पूछा कि मान्यवर मानव कल्याण के प्रति इतनी संवेदनशीलता के पीछे माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा क्या है। इस सवाल के जवाब में व्यक्त किए गए माननीय प्रधानमंत्री के उद्गारों को दोहराना, उन्हें आत्मसात करना हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। मान्यवर, आपने कहा था, एंड आई कोट, वैभवशाली राज परिवार में जन्मे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का रास्ता खोला उनके अंतर्मन की उस आवाज ने जो हमें अपने दायरे से निकलकर मानव की पीड़ा को महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। आई अनकोट। महोदय, आपके इन चंद शब्दों में मानव संवेदनाओं का अपार सागर निहित है। अलौकिक संयोग देखिए, कल 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के ही अवसर पर आपने महात्मा बुद्ध की पावन नगरी को नमन किया, बौद्ध भिक्षुओं को आस्था पूर्वक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कुशीनगर को विश्व के नक्शे पर प्रतिष्ठित किया। मैं नहीं, हम स्वयं से पहले समाज के आपके जीवन मंत्र को समाहित करते हुए हमारा उद्योग जगत मानव सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के नित्य नए कीर्ति स्तंभ स्थापित कर रहा है। जनसेवा के इसी महायज्ञ को आगे बढ़ाते हुए इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा यहां एक विशाल विश्राम सदन का निर्माण किया गया है, जिसे आज आपके कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। अब समय है वेलकम एड्रेस का। मे आई नाउ रिक्वेस्ट मिसेस सुधा मूर्ति, पद्मश्री चेयरपर्सन इन्फोसिस फाउंडेशन, फॉर हर वेलकम एड्रेस प्लीज। मिसेस सुधा मूर्ति जी। नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री मोदी जी, हेल्थ मिनिस्टर मांडविया जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, I would like to invite all of you to this great occasion, welcoming you for the joyous occasion of Infosys Foundation Vishram Sadan at Jhajjar. Sir, Infosys Foundation is only 25 years young non-profit organization. Thanks to you, sir. In 2014, you gave us 2% mandatory contribution to the CSR. We have done a lot of work. We have established 70,000 libraries, 15,000 toilets, 4,000 houses for the have-nots, and we have handled 13 national disasters and 1 pandemic. In 1 pandemic, sir, we have given we have helped people 100 crore rupees worth of medical equipment, building a hospital, etc., and 50 crore to PM Care Fund. Sir, that reminds me of a very famous shloka in Padma Purana. Lord Vishnu says, I want these flowers to me, not the Mallika or the Gulabi. Ahimsa prathamam pushpam, pushpam indriya nigraham, sarva bhuta daya pushpam, kshama pushpam visheshataha, dana pushpam, dana pushpam, yoga pushpam tathaivacha, satyam ashtavidham pushpam, Vishnum prasidam karet. Sir, in our life, at Infosys Foundation, we decided to give 1 flower to our country, Bharata Mata and Lord Vishnu both. That is
Sarvabhuta Daya Pushpam. Love everyone, every person in our country. Love every countryman. And that is the one Infosys Foundation is main aim in life. Sir, we have worked relentlessly for the last so many years with mind, integrity, transparency, and compassionate heart and hard work of the hands. It reminds me of the great shloka, Kayena vacha, manasendriyerva, buddhyatmajava, prakrtisvabhavat, karomi yadyat, sakalam namasvi, Narayana eti samarpayami. This is my Narayana and our foundation Narayana is nothing but Bharat Mata or the people of our country. Sir, this is possible only this 2% money which has spread our wings all over India and pan-India work. Sir, I really want to thank you. You are extremely busy person, sir, and you have taken time for such a small work of ours, appreciating, and you have come to on video conference. We are wholeheartedly thankful to you, Honorable Prime Minister Ji. I want to thank our Health Minister Mandavya Ji participating in this, and Shri Manohar Lal Ji, CM of Haryana. Sir, this would not have been possible, this great journey, without the help of our Chairman Nandan Nilekani and our CEO Salil Parekh, who is here on the screen, and Infosys Foundation trustees. Apart from that, sir, the team of people at AIIMS Delhi, AIIMS Jhajjar, team of people at Infosys, and my own golden team of employees at Infosys Foundation and team in PMO's office. I want to thank our contractor, chairman of CCCL, Sarveshwar, and his project manager, Thomas, who have worked relentlessly even in COVID and completed the entire work in a short duration with a good quality. There are many more people, sir, who have helped us directly and indirectly. Because of the shortage of time, I am not able to take everyone's name. And we have done this work for the benefit of our people. Sir, this is the contribution of Infosys and Infosys Foundation to the nation, Lokahitam Mama Karaniyam, which I have done a small work. Thank you very much, sir, and Jai Hind. साधारण जीवन शैली, असाधारण प्रतिभा, अभूतपूर्व राष्ट्र प्रेम, मिसेस सुधा मूर्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 800 से ज्यादा बेड्स, 2.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्टअप एरिया, विश्राम सदन की यह गौरवशाली इमारत स्वास्थ्य मंत्रालय एवं इन्फोसिस के आपसी तालमेल एवं समन्वय की भी प्रतीक है। May now request the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare for his address through video conferencing, Sri Mansukh Mandviya ji. नमस्ते। विश्राम सदन के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरी सहयोगी श्रीमती भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, स्थानीय लोकसभा सांसद श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, एम्स न्यू दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, अधिकारी गण, डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ, मीडिया के मित्र और इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, झज्जर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन और लोकार्पण के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। आज जब हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन
भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने हेल्थ कर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एम्स न्यू दिल्ली ने तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया। यह अस्पताल कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा। इंफोसिस फाउंडेशन ने इस विश्राम सदन का निर्माण अपने CSR फंड से किया। इसलिए मैं इंफोसिस फाउंडेशन की सराहना करता हूं। यह इसका उत्तम उदाहरण है कि कैसे CSR के तहत सस्टेनेबल एसेट का निर्माण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस विश्राम सदन के निर्माण से यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के दौरान रहने की बेहतर व्यवस्था यहां उपलब्ध होगी। रहने में जो तकलीफें उन्हें उठानी पड़ती थी, उन्हें अब इससे मुक्ति मिलेगी। 2020 में अपने देश में कैंसर के तकरीबन 14 लाख मामले सामने आए। 2020 में इस बीमारी की वजह से हमारे देश के 7,70,000 से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के सभी पहलू पर ध्यान दिया। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सबसे पहले तो योग और लाइफस्टाइल में सुधार के जरिए कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। वही इसके अगले चरण में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर 3 तरह के कैंसर, एक ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोविड कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग भी की जाती है। अर्ली स्टेज को ट्रीटमेंट के लिहाज से गोल्डन टाइम माना जाता है। तीसरा चरण ट्रीटमेंट का होता है। अर्ली स्टेज में कैंसर के मामले पकड़ में आने से ट्रीटमेंट और सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस अर्ली स्क्रीनिंग में अगर किसी को कैंसर निकलता तो उसके इलाज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत की है। अर्ली डायग्नोसिस से कैंसर का सही इलाज हो पा रहा है। भारतीय संस्कृति में दान की पुरानी परंपरा रही है। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, दानम भोगो नाशिस तिस्रो गतियो भवंती वितस्य, अर्थात दान, भोग और नाश धन की 3 गति होती है। धन का अगर दान और भोग नहीं किया जाए तो उसका नाश होना ही है। तो फिर दान जैसे श्रेष्ठ कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। दान की इस परंपरा की झलक हमारे शास्त्रों में और इतिहास में दिखती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसी परंपरा का एक तरह का एक्सटेंशन ही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कंपनियों को जन सेवा के लिए प्रोत्साहित करने का परिणाम आज यह हुआ है कि 2014-15 में जहां CSR के तहत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वह 2019-20 में 2.5 गुना बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 2014-15 से लेके 2019-20 के 6 साल में CSR के तहत भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सेवा कार्यों पर खर्च किया है। जब हमारे देश में कोविड संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश से सहयोग करने के लिए कहा। सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील पर जनता आगे आई। किसी ने आगे आकर खाना दिया, किसी ने दवाइयाँ दी, किसी ने वेंटिलेटर दिए, तो किसी ने ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। आज जिस इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, वह
यहाँ कैंसर का इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे देश की कंपनियां CSR के तहत जन सेवा के ऐसे ही कार्यों में और तेजी लाती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारा सौभाग्य कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी मंच पर आसीन हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में इन्फोसिस द्वारा इस परियोजना को साकार किया गया। आपसे मेरा अनुरोध महोदय कि आज की सभा को संबोधित करें। माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती भारती प्रवीण पंवार जी, हमारे सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, डायरेक्टर एम्स डॉक्टर गुलेरिया जी, इन्फोसिस की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, केंद्र व राज्य सरकार के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, बहुत ही आज प्रसन्नता का ये विषय है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में CSR के माध्यम से एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है। गर्व की बात है कि CSR के अंतर्गत बनाए गए इस विश्राम सदन का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से स्वयं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी व्यस्तता के बीच इस अवसर के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं हरियाणा की जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी, ये पहला अवसर नहीं है कि आपके द्वारा हरियाणा के विकास कार्यों की आधारशिला रखी जा रही है। हरियाणा के विकास को रफ्तार दी गई है। अनेकों अवसरों पर अलग अलग समय पर आपने अपने सानिध्य और मार्गदर्शन से हरियाणा के विकास के पथ को आगे बढ़ाया है। चाहे वह राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की बात करें तो इसका शुभारंभ ये भी आप ही ने किया था। बेशक ये बना हरियाणा में है, लेकिन समर्पित ये देश को है। देश के अलग अलग कोनों से सब लोग यहाँ आकर के अपनी पीड़ा की बीमारी को दूर करवाते हैं। ये संस्थान अनेक कैंसर रोगियों के लिए जीवन की एक उम्मीद और किरण का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, देश के किसी भी व्यक्ति का दुख और पीड़ा ये आपसे छुपी नहीं है। आप उसे अपने से अलग भी नहीं मानते हैं। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चों की पीड़ा को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वही चिंता आप भी देश के हर नागरिक की करते हैं। आपका आज का ये विश्राम सदन उसी का एक उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब कोई रोग से ग्रस्त होता है, वह अकेला अपनी संभाल नहीं कर पाता, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी चिंता होती है और साथ में रोगी के साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसको अकम्पनी जरूर करता है। और जब इस प्रकार की व्यवस्था अस्पतालों में, जैसा आज का ये विश्राम सदन, इसका जो उद्घाटन हो रहा है, ऐसे ही परिवार के सदस्यों के लिए ये एक अति आवश्यक चिंता की बात जो आपने इसको करके दिखाया है। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికీ అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. Please visit VRR Constructions, Varatex Plaza near Radhika Theatre, ECL X Road, Hyderabad. Call to 9100885552, 9100885559. आपने इससे पहले पास में लगते ही हमारा जो कुंडली मानेसर पलवल KMP मार्ग, इसका उद्घाटन किया। इसी मार्ग के साथ रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर, इसकी भी जो योजना बनाई गई है, इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से इस संस्थान को
इन दोनों का लाभ होगा। और ये संस्थान एयरपोर्ट के साथ भी बहुत जल्दी जुड़ने वाला है, वो योजना भी एक हमारी विचाराधीन है। इस संस्थान में ये जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, इसमें 2035 करोड़ रुपए की लागत से एक विशालतम निवेश ये किया गया है और इससे बहुत ही लाभ न केवल हरियाणा की जनता को बल्कि देश की जनता को भी होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोविड-19 महामारी में यहाँ के जितने भी बेड्स थे उन सबको और कोविड के लिए रिजर्व कर दिया गया था और इसका बहुत बड़ा लाभ कोविड के समय में यहाँ के संस्थान ने किया है। 800 बिस्तर का ये विशाल विश्राम सदन, इसका निर्माण इन्फोसिस ने जो किया है CSR के माध्यम से, मैं उनका भी ये जो 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कैंसर संस्थान के साथ साथ हरियाणा में हमने भी बहुत से ऐसे प्रयत्न करके और कैंसर के इस इलाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष तौर पर अंबाला छावनी का जो सिविल अस्पताल है, इसमें TCC टर्शरी कैंसर सेंटर, इसको अभी 72 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। भारत सरकार का इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसमें कैंसर के मरीजों को सभी प्रकार की सेवाएं ये उपलब्ध होंगी। हरियाणा में कैंसर के उपचार रोकथाम के लिए हर जिले में गैर संचारी रोग क्लिनिक खोले गए हैं। सामान्य कैंसर की मरीजों के इस क्लिनिक में इलाज करवाया जा रहा है। इस वर्ष 4,33,000 मरीजों का इसमें इलाज किया गया है। विभिन्न जिला सिविल अस्पतालों में भी कैंसर की जांच ये कराने के और सब उपचार किए जा रहे हैं। PGIMS रोहतक, यहाँ भी सघन कैंसर उपचार सुविधाएं ये उपलब्ध हैं। इसके अलावा राज्य के कुछ मेडिकल महाविद्यालयों में भी उपचार सुविधा उपलब्ध है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, ये उनके साथ साथ हरियाणा में कैंसर के मरीजों का ये लाभ पहुंचाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, CSR एक्टिविटीज, इसके लिए भी हमने हरियाणा में एक CSR ट्रस्ट बनाया है ताकि जितनी भी प्रदेश में काम कर रही कंपनीज हैं उन सबको ये जो 2% का उनका प्रावधान है, इसके माध्यम से हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उनका उपयोग करा सकें। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने महामारी के इस दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी को निपटाने के लिए 40 PSA प्लांट ये स्वीकृत किए और इन PSA प्लांट्स की स्थापना में देश में सभी राज्यों में हमारा प्रथम स्थान है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी की बहुत प्रशंसा करता हूं। हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए। हमने इसके लिए 13 जिलों में अपने मेडिकल कॉलेज ये खुलवा दिए हैं और आने वाले समय में हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। 2014 में जो 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटें थी, वो आज 1850 सीटें हो चुकी हैं। हमारा टारगेट 2500 MBBS की सीटों का दाखिला कराने का है, जिससे ये सब काम स्वास्थ्य सुविधा से हम आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारा बहुत उस समय ध्यान रखा कि ऑक्सीजन का जो संकट हमारे यहाँ कोविड का आया था, उसको पूरा करने के लिए हरियाणा बहुत सुदूर आगे तक पहुंच गया था। जहां तक वैक्सीनेशन का संबंध है, आज जो बताया गया है कि 100 करोड़ का ये आंकड़ा आज देश ने पूरा किया है, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। और साथ ही एक विषय का उल्लेख करना चाहूंगा कि हरियाणा की हमारी आबादी मात्र 2% है, लेकिन आज ही के दिन हम 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके ये कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो 2.5% का हमारा इसमें योगदान है। इसको बहुत जल्दी 100% तक हम लोग पहुंचाएंगे। हम लोगों ने सीरो सर्वे ये कराया है और मैं समझता हूं बहुत बड़ा सैंपल, 35,000 सीरो सर्वे का सैंपल कराने के बाद 76.3% ये जो सीरो पॉजिटिविटी ये पाई गई है। मैं आश्वस्त हूं कि कोविड-19 की महामारी पर अब पूर्ण नियंत्रण होगा और आगे इसको रोकथाम के लिए हम सब इसका प्रयत्न करने वाले हैं। अंत में CSR के तहत प्रदेश सरकार का सहयोग करने वाली सभी कंपनियों का आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर पर CSR के माध्यम से जो इन्फोसिस कंपनी ने आज ये बड़ा काम किया है, इसका बहुत विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं मानता हूं कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की उत्कृष्ट परंपराओं में
आज एक और अध्याय का सृजन होते हुए अब समय है उस मंगलमय आगाज का। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूं, रिमोट का बटन दबाकर इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करें। इसे राष्ट्र को समर्पित करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जोरदार तालियों से लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर। ऐतिहासिक क्षण। धन्यवाद महोदय। आइए विश्राम सदन की निर्माण यात्रा की कुछ झलकियां देखते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई इस लघु फिल्म के माध्यम से। As India steps into its new future and takes its place as a global power, it has sought to revolutionize the way that healthcare is delivered to its citizens. Over the recent years, under the able leadership of Shri Narendra Modi, the Prime Minister of India, the country has seen a tremendous growth in programs and efforts that have positively impacted public healthcare. And a key focus area has been to improve the lives of those with cancer. For those who are battling cancer, highly specialized treatment is often necessary, and thus, to help them, the National Cancer Institute or NCI in AIIMS Jhajjar, Haryana was envisioned by the Government of India. The vision for this campus was to have a state-of-the-art cancer hospital which is focusing not only on high-end patient care but also on research and academic activities. This is a large 700-bedded hospital. It has 25 state-of-the-art operation theatres, and it has a huge faculty of more than 2,000 members, so that we are able to address the needs of the nation, whether it be prevention of cancer, early diagnosis or treatment for cancer. As the centre became operational and scaled its services to patients, its efforts soon caught the eye of the Infosys Foundation, which shared the Prime Minister's vision of transforming healthcare across India in a holistic manner. Ours is a 1.4 billion people country. This is the duty of the non-profit organization which should help government facility like AIIMS, where expert doctors are available, treatment is available, but accommodation is not available. That made me to think of a place where patient can rest in the night. So we decided we should build something for the patient and their relatives. The Vishram Sadan or rest house was envisioned by the Infosys Foundation as an 800-bedded facility for patients and their attenders. Spread across 25,000 square meters, this multi-storied building would house a common dining facility, pharmacy, and utility shops. But most importantly, it would house 5 floors of dormitories and 3 floors of private rooms. This facility would be of immense benefit for underprivileged patients and their attenders who often came from distant places for treatment. It would also help create a safe living environment for patients who are immunocompromised. Thus, the Infosys Foundation Vishram Sadan fit perfectly into the aim of the government to tackle cancer and make treatment affordable to all. With the building completed, patients can be accommodated safely and comfortably. They now have a stronger footing to take on their battle with cancer, a battle where the Infosys Foundation stands with them in every step of the way. Thank you, Infosys Foundation. सेवा परमो धर्मः। स्वांत सुखाय जैसी भारतीय परंपराओं को नई ऊर्जा के साथ विश्व पटल पर पुनः गुंजित करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे जिनका हर विचार राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद है। मान्यवर, आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया अपने उद्बोधन से देशवासियों को गौरवान्वित करें। अपना आशीर्वाद हमें दे माननीय प्रधानमंत्री महोदय। नमस्कार जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी,
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति जी, संसद के मेरे सहयोगी गण, विधायक गण, अन्य महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। साथियों, आज एम्स झज्जर में कैंसर का इलाज कराने आने वाली मरीजों को एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाए ये विश्राम सदन मरीजों और उनके रिश्तेदारों की चिंता कम करेगा। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज के लिए मरीज और उसके रिश्तेदारों को बार बार अस्पताल जाना आना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर से सलाह, कभी कोई जांच, कभी रेडियोथेरेपी, कभी कीमोथेरेपी। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि रुके कहां, ठहरे कहां। अब नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आने वाले मरीजों की ये तकलीफ काफी कम हो जाएगी। खासतौर पर हरियाणा के लोग, दिल्ली और आसपास के लोग, उत्तराखंड के लोग, इन सबको इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था सबका प्रयास। ये सबका प्रयास की जो बात कही थी, कोई भी सेक्टर हो, जैसे ही उसमें सामूहिक शक्ति जुटती है, सबका प्रयास नजर आने लगता है, तो परिवर्तन की गति भी बढ़ जाती है। 10 मंजिला ये विश्राम सदन भी सबके प्रयास से इस कोरोना काल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भी विशेष है कि इस विश्राम सदन में देश की सरकार और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों की साझा शक्ति लगी है। इन्फोसिस फाउंडेशन ने विश्राम सदन की इमारत बनवाई है, तो वहीं इसके लिए जमीन देने और बिजली पानी का खर्च एम्स झज्जर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। मैं एम्स प्रबंधक और सुधा मूर्ति जी की टीम का इस सेवा कार्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं।
सुधा जी का व्यक्तित्व जितना विनम्र है, सहज सरल है, उतनी ही वो गरीबों के प्रति करुणा से भरी हुई है। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले उनके विचार, उनके कार्य हर किसी को प्रेरित करते हैं। इस विश्राम सदन में उन्होंने सहयोग के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। साथियों, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर ने, प्राइवेट सेक्टर ने, सामाजिक संगठनों ने निरंतर देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। आयुष्मान भारत, पीएम जय भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और ये इलाज सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी हुआ है। आयुष्मान योजना से जो देश के हजारों अस्पताल जुड़े हैं, उनमें से लगभग 10,000 प्राइवेट सेक्टर के ही हैं। साथियों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच यही साझेदारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन के अभूतपूर्व विस्तार में भी काम आ रही है। आज जब हम देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज बनाने पर बल दे रहे हैं, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बहुत अहम है। इसी भागीदारी को बल देने के लिए मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी गवर्नेंस में बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन होने के बाद भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना और आसान हुआ है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, दान दिए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर। यानी दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए जितनी सेवा करेंगे, दान करेंगे, उतनी ही संपत्ति बढ़ेगी। यानी एक तरह से हम जो दान देते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारी ही प्रगति को व्यापक बनाती है। मुझे विश्वास है आज हरियाणा के झज्जर में विश्राम सदन का निर्माण एक विश्वास सदन के रूप में भी उभर रहा है। ये विश्राम सदन विश्वास सदन का भी काम करता है। देश के अन्य लोगों को भी ऐसे ही और भी विश्राम सदन बनाने की प्रेरणा देगा। केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी प्रयास कर रही है कि देश में जितने भी एम्स हो, जितने नए एम्स बन रहे हो, वहां पर नाइट शेल्टर्स जरूर बने। साथियों, अपनी बीमारी से परेशान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों को थोड़ी सी भी सहूलियत मिल जाती है तो बीमारी से लड़ने का उनका हौसला भी बढ़ जाता है। ये सहूलियत देना भी एक तरह से सेवा ही है। जब मरीज को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त में इलाज मिलता है तो वो उसकी सेवा होती है। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से हमारी सरकार ने कैंसर की लगभग 400 दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए। ये सेवा भाव ही है जिसकी वजह से गरीबों को जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती, बहुत मामूली कीमत में दवाएं दी जा रही है। और मध्यम वर्ग के परिवार जिनके घर में कभी साल भर दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ऐसे परिवारों को तो साल में 10, 12, 15 हजार रुपयों की बचत हो रही है। अस्पतालों में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं मिले, अपार्टमेंट सरल और सुविधाजनक हो, अपॉइंटमेंट में कोई कठिनाई ना हो, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
मुझे संतोष है कि आज भारत में इन्फोसिस फाउंडेशन जैसे अनेक संस्थान सेवा परमो धर्मः के इसी सेवा भाव से गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। और जैसा अभी सुधा जी ने बड़े विस्तार से पत्रम पुष्पम की बात कही, और मैं समझता हूं सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जब भी जहां कोई न कोई पुष्प सेवा के भाव से समर्पित करने का अवसर मिले, हमने कभी भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, देश के कोने कोने में इससे जुड़ा काम चल रहा है। ये संकल्प निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर समाज और सरकार की पूरी ताकत लगेगी तो हम लक्ष्य को बहुत जल्द ही हासिल कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले एक इनोवेटिव पहल हुई थी, सेल्फ फॉर सोसाइटी। इससे जुड़कर हजारों संस्थान और लाखों लोग समाज के हित में अपना योगदान दे रहे हैं। भविष्य में हमें अपने प्रयासों को और संगठित तरीके से आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जागरूकता बढ़ानी है। आजादी के अमृत काल में एक हेल्दी और वेल्दी फ्यूचर के लिए हम सभी को मिलकर काम करते रहना होगा, और ये सबके प्रयास से ही होगा, समाज की सामूहिक शक्ति से ही होगा। मैं एक बार फिर सुधा जी, इन्फोसिस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
धन्यवाद माननीय, आपकी वाणी की दिव्यता में, आपके नेतृत्व की प्रखरता में, आपके पुरुषार्थ की प्रबलता में दुनिया के मानचित्र पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है श्रीमान। इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन प्रतीक आपके सशक्त नेतृत्व का, मां भारती के सपूतों के सामूहिक पुरुषार्थ का, उद्योग जगत के राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प का, मैं नहीं हम के विजयनाथ का, हमारे कोरोना वॉरियर्स के त्याग का। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है मान्यवर। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार। स्वामी बोधानंद गोसेव आश्रमం సైథాపూర్। జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం। దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి, మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి। అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచగవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును। నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి। మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరి గుట్ట। సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138।